Welcome to Astrology and You live talk show. Today we have world renowned celebrity astrologer Dr. Sandeep Kochar. Hi, this is Sandeep Kochar. We are in a very difficult situation across the globe, and because of this coronavirus, and people are calling me and messaging me from all over the globe, and they wanted to know the situation, why it is on, until when it will be. And as astrologer, I should be having some answers. But before that, I must tell you that you have to be careful, because it is not a disease which is only affecting common people, even rulers or ministers. Even Prince Charles has got affected by this coronavirus. So we have to be very, very cautious. That means we have to take precaution. Astrologically, on the 5th of November, when Jupiter came to Sagittarius after 12 years, it got held between Rahu and Ketu. Rahu and Ketu are malefic planet, they are shadowy planet, and Rahu is a very powerful planet. You cannot measure Rahu, you cannot find a cure when there is a disease related to Rahu. It takes a very, very long time actually. And Rahu is in Gemini, which rules our throat and that area, so virus go there and then affect lungs later on. Ketu, because it is Jupiter, which is a planet of expansion, it is spreading virus which is rules, which has this portfolio. So this combination of Rahu Ketu with Jupiter will continue till 30th of March. From 30th of March till 30th of June, this is the time, this is the window which is very important for us, because this is the time we might find a cure for this coronavirus. So there could be some antidote which will definitely help us. The other side of it is we have to maintain self-quarantine. Every country now, including India, we are in a forced lockdown, which is very, very important, because as we are all aware now that it is spreading when we are in touch with some other person. So we have to maintain that distance. We have to maintain social distancing. We have to wash our hands. We have to maintain our hygiene. Very, very important, because it spreads only through that. Second thing is, from on 30th of March, when Jupiter will go to Capricorn, it will be debilitated. So again, a benefic planet like Jupiter will become weak. The good thing is away from the affliction of Rahu and Ketu, but it will conjoin Mars and Saturn. And Mars is an exalted in Capricorn. Saturn in own house after 30 years. Both of Mars and Saturn, they are not good with each other. That is a time, this is a volatile situation where there could be some kind of disharmony within countries, or some kind of calamities happening here and there. So but good thing is, because Jupiter will be out of Rahu and Ketu, there will be definitely a cure. So my suggestion to you is, be there, try to confine yourself with your family. This is a time you will start growing within. This is a time I would suggest you to do some kind of meditation which will help you to grow internally. You will become more intuitive, you will become more happy, you'll feel the state of bliss which only comes through meditation. Do some yoga which will make you fit physically as well. Give quality time at home, with your children, with your spouse, which is very, very important. And this is a time you can create some hobbies. This is a time you can play some music and do something which makes you happy, because you can't do anything about it. It is just, as I say, if you cannot beat them, join them. So you have to join this situation, you have to accept it, because I've seen people are becoming restless and that anxiety is growing. And as I say, even medical scientists all over the globe, they say when your anxiety grows, it affects your immunity, and when your immunity goes down, it will impact your health. So please, this is a time to accept it. You can't do much about it. You have to pass this phase. As they say, nothing is permanent, everything goes with time, and this too shall pass. So I think that is a great situation. I would also suggest you not to go overboard even in investing money, like share market have crashed already, and so refrain yourself in taking any kind of risk, or don't try to find any kind of shortcut, because the most important thing in life is happiness, which we had failed to understand, because we were running after something. We were all in grind actually. We forgot the main purpose of life, which is happiness. So I think this is nature's way of correcting us. Nature is also changing. A lot of less pollution we can see now, and things are changing, people are changing. So I think after, though I'm saying after 30th 19th of September, when Rahu and Ketu will move from this axis, that is the time. It is a 6 months window. I know it is a 6-month time, which looks very long, but if you compare with your lifespan, so I think it is just a short time. So this is a time when you can take this as an opportunity to look within, work on yourself, work on your happiness, and I'm sure that this is going to be a different world. Once we will overcome this bad situation of coronavirus, definitely this will be a beautiful world, a better world. People will understand the value of compassion. People will understand more humanity. They will understand humanism
which we were not adhering to, and I think that was creating a lot of rift between religion and countries and different beliefs. So I think a lot of things will change, and I'm sure that we will definitely lead a better life, a happier life in the more beautiful world. So just follow my advice, don't panic, just relax, calm down, meditate, and I'm sure we are going to live a long life with a more meaningful life ahead. So take care, wish you all the very best. This is Sandeep Kochar with you. God bless you all. Welcome to the show, Sandeep ji. How are you? I'm very good. Thank you so much, Rashmi. It's good to connect with you. Firstly, I would like to thank you on behalf of all our viewers from USA and Canada कि आप हमारे शो पे आए हैं. बिग थैंक यू टू यू फ्रॉम ऑल आवर व्यूअर्स, क्योंकि इस समय आपको पता है सबकी इतनी परेशानी बढ़ चुकी है, और जब हमारे पास कोई एस्ट्रोलॉजर आते हैं हमारे शो में तो हमारे व्यूअर्स आर वेरी हैप्पी एंड दैट मेक अस वेरी हैप्पी. Same here. I also feel, I'm blessed and I'm privileged, and God has been kind to me to give me some kind of knowledge. Through that, if I can help people and show them some hope and some guidance, I think it is a great responsibility. This is how I take. And thank you for having me. And I hope you are doing good. You are keeping safe. या बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी एवरीथिंग इज़ फाइन. बट जब आप आए हैं संदीप जी, तो मैं जानना चाहूँगी, ऑफ कोर्स अब कोविड-19 का जो दौर चल रहा है, और इट्स वेरी बैड सिचुएशन राइट नाउ वर्ल्ड वाइड. सो आई Yeah. वुड रियली लाइक टू नो कि लाइफ आफ्टर कोविड-19 क्या आपको लगता है, आपके हिसाब से आप क्या प्रिडिक्ट करते हैं कि हाउ थिंग्स विल बी, और ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज़ बीइंग अफेक्टेड वेरी बैडली. सो थोड़ा बहुत आप प्लीज़ हमें बताएंगे उसके बारे में. जी, आपको शायद एक बात नहीं पता है मेरे बारे में. मैं जितनी एस्ट्रोलॉजी करता हूँ उतनी मैं पोइट्री भी करता हूँ. अच्छा. तो मैंने बहुत साल पहले एक बार मैं फ्लाइट में था, और अचानक अनाउंसमेंट हुआ कि नाउ वी आर नॉट गोइंग लैंडिंग देयर, वी हैव टू गो बैक, बिकॉज दिल्ली में बहुत फॉग था और मुंबई से दिल्ली की फ्लाइट थी वो. जी. और तो पूरा रनवे क्लोज था, तो वी हैव टू कम बैक टू द सेम एयरपोर्ट. मुंबई वापस आ गया, तो वो डबल फ्लाइट हो गई एंड नो वेयर टू गो, वी केम बैक. तो वहां मैंने रास्ते में बोर्डिंग कार्ड में लिखा था, इन द फ्लाइट की, वो मुझे अब याद आ गया, बहुत साल पहले की बात है, कि लोग बदल गए, जमाना बदल गया. लोग बदल गए, जमाना बदल गया, तुझसे मोहब्बत करने का इरादा बदल गया. ये दिल तुझी को चाहता था, कमबख्त बदल गया, जिंदगी तुझको जीने का मकसद बदल गया. क्या बात. सो दिस इज एग्जैक्टली द सिचुएशन. अब हम लोग ऐसे एक दौर में हैं जहाँ पे हमारी बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, हमारी सोच बदल रही है. जी. और ये बहुत सारे लोगों की जिंदगी में ऐसा पहली बार ऐसा सिचुएशन हुआ है कि वी आर ऑल इन ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, वेरी कंफ्यूज सिचुएशन, एंड वी डोंट नो, जब भी इंसान कन्फाइंड होता है, जैसे अभी इंडिया में लॉकडाउन है, 2 महीने कंप्लीट हो गए. अब ये हमें आदत नहीं है. अनलेस अनटिल किसी का फ्रैक्चर हो गया हो पैर और वो मूव नहीं कर रहा है, तो वो तो अलग बात है, वो भी मैक्सिमम 3 वीक्स. बट 2 महीने के लिए, और अभी भी पता नहीं, व्हेन इट विल बी नॉर्मलाइज. तो ये एक ऐसा सिचुएशन है, वर्ल्ड वाइड अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग सिटीज में सिचुएशन के हिसाब से कन्फाइंड है या लॉकडाउन है, जो भी है. तो उसमें एक फियर फैक्टर हो गया है, बिकॉज मैन इज सपोज टू बी ए सोशल एनिमल. हमको बाहर निकलना, लोगों से मिलना, बातें करना, और उससे बड़ी बात क्या है कि हम सबके ड्रीम्स होते हैं, एस्पिरेशंस होते हैं कि 2020 आएगा और हम ये करेंगे, और बाय मार्च वी विल डू दैट, और नेक्स्ट मंथ हम ये करेंगे. वी हैव टारगेट्स एक्चुअली, वीकली एंड मंथली और एनुअल, व्हाटएवर. तो वो सब के सब अभी क्लोज हो गए. तो ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें अब समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट टू डू. तो पीपल आर इन डिलेमा. दैट इज सो ट्रू. बट अभी आपको क्या लगता है ये दौर कब तक चलेगा, एंड हाउ थिंग्स विल बी, इट विल बी फाइन? लाइक ऑफ कोर्स आपका जो मैं इंट्रो में सुन रही थी, आप कह रहे थे कि पैनिक ना करें, बट इट्स नॉट दैट इजी. पीपल आर इन अ वेरी बैड शेप, दे आर इन मोड ऑफ डिप्रेशन, और उन्हें समझ नहीं आ रहा है. बहुत से लोगों की जॉब्स भी जा रही हैं, तो उन्हें लग रहा है कि देखिए इसका वैक्सीन आ जाएगा तो आई थिंक सो थिंग्स विल बी मच मच बेटर. बट आपको क्या लगता है, लाइक ऑफ कोर्स जैसे कि राहु केतु का आप बोल रहे थे कि ग्रहों की स्थिति जो है उससे ये सिचुएशन पैदा हुई, तो जी. जी. अब आगे कैसी परिस्थिति लगती है आपको? देखिए, इसके दो आंसर हैं रश्मि जी. पहला आंसर तो यह है कि जो आप बता रही थी, वो आंसर मेरा था, लेकिन आंसर आपने दिया है वो एकदम परफेक्ट है. कि जब राहु और केतु का एक्सिस निकल जाएगा, बिकॉज जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ पॉजिटिविटी, प्रोस्पैरिटी.
हैप्पीनेस, जितनी ब्यूटीफुल चीजें हैं और जितनी इवन चाहे वो करियर है, चाहे वो आपके स्पिरिचुअलिटी है, विजडम है या लक फैक्टर है, वो सब जुपिटर से रूल्ड है। और जुपिटर जब भी अफ्लिक्ट होता है, आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, वेन एवर गुरु इज अफ्लिक्टेड, प्लैनेट जुपिटर जिसको बृहस्पति भी कहते हैं, तो कहीं ना कहीं या तो ग्लोबल रिसेशन आया। और मैं आपको याद दिलाऊं, 2 साल पहले ऑलमोस्ट 19 जुलाई 2018 को, मैंने पोस्ट किया था अपने फेसबुक पर, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, कोई वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल में है, जहां मैंने कहा था कि 2020 एंड 2021 दोनों साल जो हैं, वी विल एक्सपीरियंस सम काइंड ऑफ ग्लोबल रिसेशन। और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये ग्लोबल रिसेशन किसी वायरस की वजह से आएगा, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी में क्या है, वी आर, एटलीस्ट मी, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम सपोज टू बी वेरी पॉजिटिव पर्सन, आई ट्राई टू give some kind of positivity to the people for a better and happy life. This is what I do. मैं कभी भी fear factor में believe नहीं करता, जबकि एस्ट्रोलॉजी का बिजनेस को जैसा है, is a business of fear and lies, unfortunately not everyone but most of them, they are trying to make good money by putting this fear. but मैंने ये जरूर कहा था कि 2020 और 21 में एक रिसेशन आएगा, और ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था इस सिचुएशन की ऐसे हो जाएगी। लेकिन जैसा आपने कहा, गुरु प्लैनेट है जो प्रोस्पेरिटी को रूल करता है, वो 2009 में भी अफ्लिक्ट हुआ था, 2008 एंड 9, 1 साल का ट्रांजिशन होता है, तो वो तब रिसेशन आया था लास्ट टाइम। और अभी गुरु राहु केतु के साथ है, और जब केतु और राहु का एक्सिस है, तो ऐसे में कुछ वायरस स्प्रेड होने की चांसेस हो गए। अभी क्या है, एस्ट्रोलॉजी में इट इज वेरी इजी टू रिलेट। बाद में तो सबके वीडियो आ गए, कि ऐसा होने वाला था और वहीं से शुरू होना था और यहाँ तक चलना था। it is very difficult to predict in advance. It is very easy to relate things after the incident. That is what most of the astrologers are doing. बट फिर भी मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि राहु केतु का जब एक्सेस हटेगा गुरु से, ऑन 19 सितंबर, देन डेफिनेटली थिंग्स शुड बिकम बेटर। दूसरा आंसर इसका ये है कि अब ये जो सिचुएशन है, वैक्सीन अभी तक आई नहीं, और कोई भी नई अगर किसी वायरस की या किसी भी पैंडेमिक की वैक्सीन आती है, उसमें कम से कम 1-1.5 साल मिनिमम लग जाता है। तो अभी हिट एंड ट्रायल पे चल रहा है, किसी कंट्री में कौन सी वैक्सीन को दे रहे हैं, कहीं किसी और को दे रहे हैं, इबोला से लेके HIV, सारी मेडिसिन उन्होंने इवन ये यूज कर ली, और कहीं पे ठीक हो रहे हैं, कहीं पे दोबारा वापस आ रहा है, तो स्टिल दे डोंट नो कि मलेरिया की दवाई से भी ठीक हो सकता है। तो ऐसा हो गया है, आयुर्वेद में इंडिया में काफी चल रहा है। बट जब भी ये टाइम लगेगा, तो वो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब तक इसका परमानेंट क्योर नहीं है, जब तक इसका वैक्सीन नहीं आता है, वी हैव टू लिव विद इट। आपके यूएस में इतना कैजुअलिटी हुआ, इज वेरी सैड, and but still people are really courageous to come out and look for their livelihood। और इंडिया में ये डिबेट, या पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड यही डिबेट चल रही है रश्मि जी, की व्हाट इज इंपॉर्टेंट, लाइव्स और लाइवलीहुड। तो ये लाइव और लाइवलीहुड का जो 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 एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है, बिकॉज देयर लॉट ऑफ पीपल, मैं एक बार अपने ऐसी लाइव उसमें शो में कह रहा था, या वी ऑल नो दीज आर टर्बुलेंट वाटर्स, बट द प्रॉब्लम इज कि कोई तो बहुत बड़े शिप में जा रहा है, कोई बेचारा छोटी सी नाव में जा रहा है। तो छोटी सी नाव के वाले के पास अभी अगले महीने का भी ग्रोसरी है, राशन का सामान है कि नहीं पता नहीं। जो बड़े शिप में जा रहा है वो कहेगा इट इज ऑल राइट यार, चल रहा है, दे कैन सर्वाइव फॉर अनदर ईयर और व्हाटएवर। सो व्हाट आई एम सेइंग इज एवरीवन इज इन ए डिफरेंट सिचुएशन, बट जो ग्लोबल सिनेरियो है इट इज सिमिलर। तो हमें आदत डालनी पड़ेगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डरना भी जरूरी है। देयर लॉट ऑफ पीपल हु आर करेजियस इनफ कि अरे कुछ नहीं होता। किसी अभी एक कंट्री में एक्सपेरिमेंट भी कर लिया उन्होंने, हर्ड इम्यूनिटी, जो सक्सेसफुल नहीं था, उसमें लॉट ऑफ कैजुअलिटीज हुई, और दैट इज नॉट ए गुड थिंग। अभी यहाँ तक सुनने को आ रहा है कि ये जो वायरस का जो बिहेवियर है वो चेंज होता जा रहा है। इट इज टेकिंग अ लॉन्गर टाइम टू शो सिम्टम्स एंड लॉन्गर टाइम इट विल टेक टू गो अवे। तो देयर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर हैपनिंग। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली एट दिस स्टेज। तो हम अगर इसकी आदत डाल लें कि जैसे हमें बारिश हो रही है, अगर हम रेनकोट नहीं ले जाएंगे, अम्ब्रेला नहीं ले जाएंगे, तो विल बी ड्रेन, हम भीग जाएंगे। तो सेम अगर हम ग्लव्स नहीं पहनेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, तो ऑब्वियसली वायरस माइट अट्रैक्ट। और वैसे भी मौसम बदलता है, ठंड में ऑब्वियसली यू कांट वियर हाफ स्लीव टी शर्ट, यू हैव टू वेयर अ जैकेट एंड वुलन एंड व्हाटएवर। तो सेम गोज विद वायरस, यू हैव टू लर्न टू लिव विद इट अनलेस कोई इसका वैक्सीन वहां पे नहीं आ जाए। ये उसका दूसरा आंसर था जो मैंने प्रैक्टिकल आंसर दिया। बट एस्ट्रोलॉजिकली अगर इकोनॉमिकली मैं बोलूं तो 19 सितंबर से डेफिनेटली वैक्सीन के आने की चांसेस और चीजें इंप्रूव होने की कोशिश करेगा। बट अगला साल पूरा अभी है, जब तक ये जुपिटर का डेबिलिटेशन रहेगा 1 साल और, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं वी हैव टू लिव विद इट। बट इसका इम्पैक्ट यूएसए में बहुत ज़्यादा पड़ा और इंडिया में थोड़ा कम था, तो वाई इसमें भी कुछ प्लानिटरी पोजीशंस का
था। नहीं, इसमें प्लानिटरी पोजीशन नहीं थी, मैं बताना चाहता हूँ। देखिए इसमें क्या था कि ये सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कहीं भी किसी भी कंट्री में सबसे ज्यादा वहां हुआ जहां पर डेंसिटी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। अब जितने भी बिगर सिटीज हैं, आप भी अपने यूएस में देख लीजिए, इंडिया में देख लीजिए, आई मीन मुंबई, टॉप कर रहा है इस समय ये नंबर्स में। और इवन दिल्ली इज नॉट फार बिहाइंड। तो ये बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं। एक आप ट्रेन में जाइए तो जहाँ पे 100 लोग आने चाहिए वहाँ 300 लोग एक साथ सफर करते हैं। तो बसेस में भी वेरेवर, तो जहाँ पे भी डेंसली पॉपुलेटेड होता है, और वैसे भी लोगों ने डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया, बिकॉज इट इज द वायरस इज ओनली बाय टचिंग, और व्हेन यू आर टॉकिंग, और जो भी जाता है जिस भी तरह से एयरबॉर्न हो गया या टच होने से हो गया या व्हाटएवर इट इज, तो उसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो जहां जहां लोगों ने, इंडिया में क्यों नहीं इतनी स्पीड से आया अभी, मुझे लगता है अभी कल एक 1 लाख 100,000 आप लोग कहते हैं वो क्रॉस हुआ है। तो इंडिया का नंबर अभी भी आई थिंक 11th है या 12th है फ्रॉम टॉप, और यूएस इज मोर देन आई थिंक 12 lakhs, आई थिंक 14 lakhs हो गया अभी आप लोगों का इन्फेक्शन का नंबर। तो इंडिया में लॉकडाउन बहुत जल्दी इन्होंने कर दिया था। अप्लाई कर दिया था, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत सी चीजें कंट्रोल हो गई। लेकिन लोग, जैसे मैंने कहा, डेस्परेट रहते हैं एंड दे डोंट नो, तो वो लोगों ने मिलना शुरू किया या कहीं नहीं माना लॉकडाउन जी को, जी तो जी। उसकी वजह से फिर स्प्रेड हो रहा है। ऑफ कोर्स। तो ये इसमें प्लानिटरी रोल नहीं है, रश्मि जी, मैं कहना चाहता हूँ। इसमें जिस जिस कंट्री ने जिस जिस लेवल पे इसको कंट्रोल करने की कोशिश करी है, राइट मेजर्स लिए हैं, वहां पे उस हिसाब से नंबर आए। करेक्ट करेक्ट, अग्रीड, या ऑफ कोर्स। मैं एक बात आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि हम कहते हैं कि एवरीथिंग इज डेस्टिन, और फिर हम कहते हैं कर्म करो और फल आपको मिल जाएगा। तो हाउ वी कनेक्ट विद दिस कर्मास एंड डेस्टिनी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आप बात अभी के पैंडेमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही हैं, तो वो मैं कह सकता हूँ उसका आंसर दूसरा है, और उसका एक जो अगर इज अ डिफरेंट क्वेश्चन तो नो, उसका इट्स अ आंसर अलग है। जनरल मैं दोनों का, क्वेश्चन आई एम आस्किंग कि जनरली जो हम कहते हैं तो उसको आप कैसे कनेक्ट करते हाँ, हैं? उसको मैं ऐसे कहता हूँ, सबसे पहले आई आई ऑलवेज से कि वन थिंग यू कैन नॉट चूज इज योर पेरेंट्स। जब बच्चा ओके। पैदा हो रहा होता है तो उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता है कि वो आपकी तरह न्यूयॉर्क में रहेगा, न्यू जर्सी में रहेगा, या वो बेचारा छोटे से एक गांव में कहीं पैदा होने वाला है, झोपड़ी में। जी। वन कैन नॉट चूज हिज पेरेंट्स, यू नो। तो इसको कहते हैं प्रारब्ध, डीड्स डन इन द पास्ट बर्थ। उसके हिसाब से इंसान का बर्थ होता है इस लाइफ में। ये एस्ट्रोलॉजी का बिलीव है, और वैसे भी ये हिंदुइज्म का बहुत स्ट्रांग बिलीव है। कर्म कर्म बेस्ड हो रही है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। अगला बर्थ मिलने वाला है, उसी में चलता रहता है। तो यू वन कैन नॉट चूज द पेरेंट्स, तो वहीं से आपकी जर्नी शुरू हो गई। पर जिसको हम डेस्टिनी कहते हैं, फ्यू थिंग्स विच आर फिक्स। पर मेरा एक फेवरेट स्टेटमेंट है कि डेस्टिनी इज फिक्स, नो वन कैन चेंज, बट ए चेंज इज चेंज वन यू चेंज। तो यहाँ पे चेंज करना है। अब डेस्टिनी एक तरफ मैं कह रहा हूँ डेस्टिनी फिक्स है, फिर कह रहा हूँ मैं चेंज कर लो, तो ये तो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। नहीं, अब डेस्टिनी को भी डिफाइन करते वक्त बोला गया कि डेस्टिनी इज 70% फिक्स, 30% इज इन योर हैंड। एंड व्हाट इज दैट? फ्री विल। कि how well you are utilizing your resources, your opportunities in this life, how happy you are, how spiritual you are, how wise you are, तो जब इंसान, कई लोग हैं इतने एग्रेसिव होते हैं, हर बात पे लड़ लेते हैं, अपने रिश्ते स्पॉइल कर लेते हैं, डिवोर्स होते रहते हैं, किसी से जमती नहीं है, कोई पार्टनर नहीं होता, कोई उनका कुछ भी नहीं होता, दे आर बिकॉज ऑफ एग्रेशन, दैट एग्रेशन बिकम्स देयर एनिमी नंबर 1। कितने लोग हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, कहा कुछ और लग गया कुछ और, फिर वो डिप्रेस हो गए, तुम मुझे समझते नहीं हो, यू डोंट लाइक मी एनी मोर, यू डोंट लव मी, यू डोंट अंडरस्टैंड माई इमोशंस। तो वो लोग बेचारे नेगेटिव 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 उसमें इमोशनल हो जाते हैं। कितने लोग बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, अपनी बातों को शेयर नहीं करते, समझ में नहीं आता, इधर यू आर हैप्पी और यू आर अपसेट बिकॉज ऑफ समथिंग। सो एक मिडिल पाथ इज ऑलवेज द राइट पाथ। और मैं हमेशा कहता हूँ, केयरफुल होना बहुत अच्छी बात नहीं है। सारे लोग आज की डेट में केयरफुल हैं, और केयरलेस होना भी बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, उससे नुकसान होता है। सबसे अच्छे जो ब्लेस्ड लोग होते हैं, विच आई फील, एंड आई ऑल्सो फील गुड इन सेइंग दैट आई एम अ पार्ट ऑफ इट, दे आर द पीपल हु आर केयर फ्री। हम्म। तो ये सबसे जरूरी है। आई ऑलवेज से गो विद द फ्लो। मैंने इसमें एक पोइट्री लिखी थी कि जिंदगी तो महज एक दरिया है, द फ्लोइंग वाटर। जिंदगी तो महज एक दरिया है, बहते चलो, बस यही एक जरिया है। बहुत अच्छा। सो इफ यू कीप गोइंग विद द फ्लो, आई थिंक दैट इज द राइट आइडिया। तो अगर ये एक्सेप्टेंस के साथ अगर आप समझ जाएं कि इफ इट इज अ टर्बुलेंट वाटर एंड दिस इज द टाइम नॉट टू गो ओवरबोर्ड और इन्वेस्ट मनी समवेयर, आप अपने पैसों को नहीं फंसा रहे हैं, रिस्क नहीं ले रहे हैं, जॉब नहीं छोड़ रहे हैं अपनी मर्जी से कि मुझे अब बिजनेस करना चाहिए, तो आपका 30% आपके हाथ में है, बिकॉज यू आर यूजिंग योर विजडम। या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो आपका ऑप्टिमिज्म, आपकी पॉजिटिविटी, आपका हार्ड वर्क, ये सारी चीजें मिला के वो 30% को रूल करता है जो आपके हाथ में। और 70% जो मैंने कहा कि यू कैन नॉट चूज योर एनवायरनमेंट, योर अपब्रिंगिंग एंड द सिटी और वेर एवर पेरेंट्स यू आर, तो वो चीजें उसके हिसाब से चलती रहती हैं। लेकिन अगर इंसान बैलेंस बना ले और अपने एटलीस्ट जो 30% आपके हाथ में फ्री विल है उस पर पूरा फोकस करे, तो वक्त कैसा भी चल रहा है एटलीस्ट आपके हाथ में 30 आउट ऑफ 30 तो हमेशा रहेगा। तो आई बिल्कुल। बिलीव लॉट ऑफ पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म और ऑब्वियसली हार्ड वर्क आपके लक को इन्फ्लुएंस करता है। करेक्ट। सो अभी आपने जो बात की थी इन्वेस्टमेंट के लिए, इवन आई हैव हर्ड बिफोर आल्सो व्हेन वी हैव रन योर शो रील, कि इन्वेस्टमेंट का सही टाइम नहीं है, तो ऐसा क्यों कहा आपने? मैं जानना चाहूंगी इसके बारे में। ऐसा, और देखिए उसमें मैंने ये एक वर्ड उसमें मैंने ऐड किया था कि रिस्की, रिस्क वाले जोन में मत जाइए। तो अभी क्या है, जो आपका सवाल है उसका एक आंसर और भी है। जब 2008 और 9 में ग्लोबल रिसेशन आया था, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे हु गेन्ड आउट ऑफ इट, या मल्टी मिलियनर बन गए, मिलियनर बिलियनर भी बन गए। ये वो लोग कौन होते हैं जिनकी जन्म कुंडली में रश्मि जी होता है विपरीत राजयोग। और मैं आपको टेक्निकली बताता हूँ, 12 हाउसेज में से 6, 8, 12 हाउस का जो लॉर्ड होता है, ऑल 3 बैड हाउसेज हैं। अगर वो एक दूसरे के घर में चले आए 6 to 8, 8 to 12, 12 to 6 और 8 to 6, इट 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 यू नो इट कॉजेज विपरीत राजयोग। विपरीत मतलब अपोजिट। तो ये कलयुग है, इसमें विपरीत राजयोग सबसे स्ट्रॉन्ग राजयोग होता है। तो कहते हैं somebody's loss is your gain। तो ओके। somebody will lose somewhere and you will gain out of it। तो इसमें लॉट ऑफ पीपल, आप इतिहास उठा के देखिए, जितने बड़े बड़े आपको इंडस्ट्रीज मिलेंगे, मल्टी बिलियनर मिलेंगे, इन्होंने सब डिस्ट्रेस टाइम पे ही वो यूनिट एक्वायर किए थे, वो बिजनेस या वो फैक्ट्रीज या व्हाटएवर। अभी एक ऑस्ट्रेलिया में एक एयरलाइन है, आई थिंक सम वर्जन समथिंग, या अब नाउ ऑल पीपल आर बिडिंग, वो क्योंकि उसने बैंक्रप्सी के लिए अप्लाई कर दिया है, तो नाउ पीपल आर बिडिंग, तो नाउ दे विल बी ओनर ऑफ ऑस्ट्रेलियन एयरलाइन। तो ये कैसे होता है? तो व्हेनेवर देयर इज अ विपरीत राजयोग, पीपल विल गेन आउट ऑफ इट। लेकिन बाकी आम लोगों के लिए, उनको मैं यही जरूर एडवाइस दूंगा कि इस समय मल्टीप्लाई करने का जमाना नहीं है। खाली 1+1 करते रहिए। अब 2+2 या 2 × 2 भी 4 ही होता है, लेकिन 2 और 2 22 के चक्कर में मत पड़िएगा, बिकॉज यहाँ पे अगर आपने रिस्क ले लिया तो फिर सिचुएशन डिफिकल्ट हो जाएगी। और शेयर मार्केट चाहे वो इंडिया का हो या ग्लोबली आपके यहाँ का हो, इट इज नॉट गोइंग टू बी स्टेबल फॉर अनदर 1 year अकॉर्डिंग टू जुपिटर विच इज अफ्लिक्टेड। So this is my suggestion कि no risk and don't go overboard. This is what I'm saying. या लिटिल बिट प्रिकॉशन इज इम्पोर्टेंट फॉर नाउ। Precaution is better than cure। और मैं तो यहाँ भी कहूंगा कि sometimes they say no decision is better than bad decision। So wherever you are, whatever job you have, even if you are dissatisfied, even if you're not enjoying it, कि मेरा promotion नहीं हो रहा है और मुझे ये नहीं मिल रहा है और उसका हो गया, whatever, please be there। ये वक्त नहीं है कुछ ऐसा डिसीजन लेने का, बिकॉज जो भी आप डिसीजन लेंगे, ये बिल्कुल भी माहौल ठीक नहीं है। बिकॉज एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं पर्सन प्लेज एन एनवायरमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देश, काल और पात्र, वो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली राइट। सो आई वुड लाइक टू नो कि यू डू palmistry ऑल्सो, आप फेस रीडिंग भी करते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी का भी, सो इज इट इंटरकनेक्टेड और इज इट सेपरेट? See, all three are interrelated। कई बार energies, when you are talking to someone, you feel good about a person। Sometimes you feel यार, I'm not liking that person। उसने बेचारा आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, but you're not liking it। Sometimes you are someone is sitting next to you in the flight, या और आपने उसको हेलो भी नहीं कहा बेचारे को। और कई बार क्या हुआ कि आपने लैंड करते ही उससे शादी कर ली। तो कितनी बार यू डोंट नो हाँ कि जी। कब कैसे किसी का एनर्जी, किसी की सिनर्जी जो है वो मैच कर जाती है, रिबेल करती है। तो इट इज बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स। बट जो आपने बात की है, यस, पामिस्ट्री प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपके माउंट्स कैसे हैं, आपकी लक लाइन कैसे जा रही है, क्या उसमें कट नहीं है? अगर कट नहीं है तो उसमें मतलब लाइफ में जो रोड ब्लॉक्स आते हैं या हार्डशिप्स आती हैं वो नहीं आएंगी। सेम गोज विद योर लाइफ लाइन, सेम गोज योर फेम की लाइन कितनी है, मनी लाइन के आपकी कैसी है। तो बहुत सारी चीजें जो है वो वहां से पता चल जाता है। कई बार टाइम ऑफ बर्थ किसी का इनकरेक्ट है, उसको पता ही नहीं था कि 15 मिनट पहले हॉरोस्कोप चेंज हो रहा था, वो हाथ देखा तो पता चला कि इट इज नॉट मैचिंग। या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फेस, क्योंकि बॉडी का एक एक पार्ट, स्पेशली अगर मैं फेस की बात कर लूँ, ये आपके प्लैनेट जो हॉरोस्कोप में बाद में देखता हूँ मैं, पहले मुझे उसकी शक्ल से समझ में आता है कि इसका मर्क्यूरी ऐसा होगा बिकॉज इसकी नोज ऐसी है, ये इसका कुछ सन ऐसा होगा। बिकॉज ईगो, इंटेलिजेंस, इंसान का विजडम, इंसान की लर्निंग एबिलिटीज, एनर्जी लेवल्स, उसकी सोच, उसकी स्ट्रेटेजाइजिंग थिंग, उसका इमोशन, एवरीथिंग यू कैन सी फ्रॉम ईयर्स, नोज, आईज, आईब्रोज एंड फोरहेड। यहाँ से विल पता टेक चल वन जाता है। कॉल संदीप जी।
Yes, you're Sure. live with Sandeep ji. Yes, you can talk to him. Hello, Sandeep ji. How are you? Yeah, from where you're calling, ma'am? Yeah. Hello. I'm calling from Nashville, Okay. Tennessee. Mm-hmm. Yeah, I'm good. How about Like, you? Tell me. I have a general question actually कि मुझे है ना traveling का बहुत ज़्यादा शौक है and I जो अभी current situation है so I just wanted to ask संदीप जी कि कब होगा ऐसा and how long till we can be comfortable traveling anywhere. Right now it's really difficult, but traveling and entertainment industry also when does he think it's going to get back to normal a little bit that we can travel freely anywhere? I think you must be listening. I just said that September तक situation will be a little bit difficult, though airlines are opening up. UAE में भी शुरू हो चुका है, इंडिया में भी डोमेस्टिक शुरू होने वाला है, and but they will definitely maintain lot of precaution they will take, चाहे वो डिस्टेंस रिलेटेड हो या आपके हाइजीन से रिलेटेड हो. तो आई थिंक वी हैव टू कन्फाइन. बट देखिए, शौक तो बहुत अच्छी बात है, बट लाइफ से बढ़कर कुछ नहीं है. अभी जिस जिस बीमारी का इलाज ही नहीं है, जिसकी कोई वैक्सीन नहीं है, तो इट इज दैट मीन्स वी आर इन ए वेरी डिफरेंट डिफिकल्ट और एक डेंजर जोन में है. तो ऐसे मुझे लगता है कि आप भले ही यूट्यूब में व्हाटएवर प्लेसेस यू विश टू गो, आप उसकी वीडियोस देख लीजिए, बट अभी ट्रैवल को माइंड में मत लाइए. बिकॉज मैंने इस पे उस दिन मैंने कुछ लिखा था कि ना रास्ते का पता है, ना मंजिल की है खबर, ना रास्ते का पता है, ना मंजिल की है खबर, बस यूं ही बैठा है मुसाफिर, ना जाने आई फॉरगॉट, मतलब समथिंग बेखबर व्हाटएवर. तो आई रोट इट. तो मतलब पता ही नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, ना रास्ता है ना मंजिल है. आई सॉरी, आई फॉरगॉट द लास्ट लाइन. बट व्हाट आई एम सेइंग इज बेटर टू स्टे पुट. तो मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ. आई एम ऑल्सो ए ट्रैवलर. Every month I'm traveling to another different countries, but I'm also confined, but it is okay. तो जिंदगी में acceptance बहुत जरूरी. So this is something which I think you should follow, but definitely nothing is permanent in life. बदलना तो है ही, because time keep on going. तो मुझे लगता है कि सितंबर के बाद definitely things should become better. but आपको मैं पर्सनल एडवाइस ये देना चाहता हूँ कि जब तक वैक्सीन बाहर नहीं आती है, प्लीज, जब तक इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, इज नॉट अर्जेंट दैट यू नीड टू सी योर बेबी और wherever you wish to go for some urgent reason, please try not to travel. This is my suggestion. All right. Thank you, miss. Thank you so much. Thank you. You're welcome. There's a lot of pressure on, like, we'll take one more caller. Yes, you are live with Sandeep ji. Hello, Sandeep ji. How are you? I am very good. How about you? Thank you. Good, good. Actually, मुझे अपनी हेल्थ के बारे में आपसे कुछ पूछना है. और मैं आपको अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम मालूम है? आपका she's from New York. What's your time and date of birth, please? मेरा डेट ऑफ बर्थ है जुलाई 18, 1987. July 18, 1987. Time? And time है 4:15 p.m. 4:15 p.m. Place of birth? Place of birth? Gujarat. Where in Gujarat? Navsari, Surat. Okay, I will just repeat your details. 18th of July 1987 is Saturday, 4:15 in the evening, 16:15, and it is in Surat in Gujarat, Navsari, right? Yes, that's true. देखिए, सबसे पहले I must tell you, वैसे तो you are very energetic person. I think sports से लेके anything which is creative in nature, you are very fond of learning something which is beautiful and creative all the time. Am I right? Yes, I do, but I have right now there is the issue with my medical problem, so that's why I'm asking that what is the. Yeah, मैं अभी की बात नहीं, मैं आपकी लाइकिंग की बात कर रहा हूँ. I will come to that. तो लाइकिंग की बात कर रहा हूँ. You want to create something, you want to learn and explore something which is creative in nature. This is what I'm saying. Yes. ओके, देखिए अभी हो क्या रहा है कि यू आर रनिंग ए दशा ऑफ मून इज अ प्लैनेट ऑफ इमोशन. अगर आपको याद हो, 2017 एंड 18 वाज अ वेरी डिप्रेसिंग फेज फॉर यू. एम आई राइट? यस, दैट्स ट्रू. तो वहां से जो आपकी बैंड बजी मेंटली, यू आर स्टिल देयर. सो मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, वो जिंदगी का सबसे नेगेटिव दौर था और आप अभी तक उधर ही फंसे हो, बिकॉज योर माइंड इज ऑलवेज थिंकिंग. सोते सोते भी आपका माइंड चलता रहता है. यू आर नेवर एट पीस. एम आई राइट? हाँ जी, 100% आप सही बोलते हैं. तो अभी डॉक्टर के पास भी अगर आप जाएंगे ना, तो वो डॉक्टर भी आपको कहेगा, सॉरी मैं आपका नाम भूल गया.
What's your name? Ankita Patel. Ankita Patel. अंकिता. तो डॉक्टर अंकिता, आपको डॉक्टर यही कहेगा, अंकिता डोंट कम टू मी अगेन, बिकॉज योर ओनली प्रॉब्लम इन दिस लाइफ एंड और बेसिकली अबाउट योर हेल्थ इज बिकॉज ऑफ योर माइंड. You know, medical scientists all over the globe, they say everything is psychosomatic. You know, when I was in London, I read an article and the headline said doctors will keep on telling you it is all in the mind. And then I read it, it said they have discovered another phenomenon known as BDS, bodily distress syndrome. So when body is thinking too much about something, you create some anxiety within you, and that anxiety impacts your emotional, hormonal and chemical imbalances within you, and then because of the stress you are attracting some kind of ailment. So what I'm saying is, whatever ailment you have, you keep continuing with the medicine. But if you trust me on one thing, please start doing meditation. Meditation will calm you down. Meditation will make you very positive, very optimistic, and please delete every thought which you have in mind, because आपका जो सबसे depressing time था वो निकल गया. You know, तो आपने अभी भी वो memories वहीं पे संभाल के रखी हुई हैं. I know this is your 33rd year, and I don't know how good is your married life, because are you married? Are you Yes, married? I am married. She's married. तो मैं आपके हस्बैंड को बहुत सारे मतलब कॉम्प्लीमेंट दे सकता हूँ, यू नो, बिकॉज ही इज हैंडलिंग यू, दिस इज रियली अप्रिशिएबल. बिकॉज आपका जो रिएक्ट कर जाते हो आप, छोटी छोटी बातों में अटक जाते हो आप, दैट मेक्स योर लाइफ डिफिकल्ट. डोंट यू फील सो? यू रियलाइज इट, बट तब तक कई बार लेट हो जाता है. एम आई राइट? Yes, that's true. 100%. तो प्लीज आप अपने हस्बैंड को संभाल के रखिए. ऐसे हस्बैंड मार्केट में अब नहीं है. So you have found a good husband who is handling you and taking care of you. So you just relax. आप मेरे कहने पे एक मेडिटेशन को जिंदगी में एक 10 मिनट के लिए, 10 minutes every day, if you can just surrender to the form of God you believe in. Just calm down, take deep breath, you know, work on your breath, or maybe visualize a light between your eyebrows, which is third eye. You will be all good. और एक मेरी लाइन आप याद रखिए, जिंदगी की कहानी पहले ही लिखी जा चुकी है. The destination of life is already destined from the day one to the last day. Do you agree with it or no? Yes, I am definitely. When you are saying yes, then why you are thinking? जब मूवी थिएटर में देख रहे हो और आप वहां पे दिमाग लगा रहे हो, मुझे लगता है ये सीन में अब ऐसा चेंज करना चाहिए. हाउ? मूवी इज ऑलरेडी देयर. तो जिंदगी की कहानी पहले ही लिखी जा चुकी है. जैसे अभी खाली माइंड है तो वो कहते हैं ना कि वो खाली तो प्लीज, दिमाग So शैतान आप का हाँ, ऐसे Ankita जी please meditate करिए. That's what he's saying, and that और will be good for you. So क्रिएटिव, we'll इनको have मुझे another लगता है caller. कि शी Thank नीड टू you. बी, हाँ, यू नीड Thank टू you बी so much, ऑक्यूपाइड. Rishi. तो आप Thank you. ऑल द बेस्ट. मुझे लगता है थोड़ा सा इनको ऑक्यूपाइड होना चाहिए जो क्रिएटिव चीजें हैं, तो दैट व्हेन माइंड इज बिजी समवेयर देन शी विल बी गुड. Let me see. Okay. Hello, who's this? Yes. Yeah, you calling regarding? I'm calling to speak to Mr. Sandeep, who's live right now, the astrologer. Yeah. Yes, you're live with him. What's your question? Your Yes. time, date of birth, and place. Okay, the date of birth is 13th of December 1981. 13 13 December December 1981. 1981. And the time of birth is 1:48 a.m. 1:48 a.m. And Place your of birth? place of birth? Place of birth is Chennai. Chennai. And what is the question, It is ma'am? Sunday, right? The question, see, currently See, I'm out of job. I was working in the नहीं, travel industry. Yes. सॉरी, मैं आपको बताता हूँ. देखिए, लिसन टू मी. सॉरी, आई मिस्ड आउट योर नेम. What's your name? Ekta Deepak Sujanani. Ekta देखिए, Deepak. एकता जी, फ्रॉम 13 December 1981, 1:48 in the morning. एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ. देयर वर लॉट ऑफ टर्बुलेंस सिंस लास्ट ईयर. यू नो, लास्ट मार्च से यू आर नॉट इन ए वेरी हैप्पी स्टेट. Correct, sir. And if you ask me the right word, if I can use it, you know, you are in a state of almost in a depressing state. And this will continue till September. So another few more months. And after that, you will be all set. You know, you were running a phase of 19 years of Saturn, which got over last year, and promising another journey. So आपकी जो job गई है, it has a big meaning to it. And you will remember me for that. Because आपका जिंदगी का सबसे beautiful दौर शुरू हो चुका है. The only problem is, you know, there are 3 problems in your life. और जब आपने ये बात आज मेरी जान ली, you know, you never thought कि you will speak to me, because it is just a random call, and I didn't know that you will be talking to me. But if today, if you take it as a message, आपका सबसे बड़ा problem पता क्या है? You cannot ignore anything. Yes. छोटी छोटी बातें जो आप पकड़ लेते हैं ना, उसकी वजह से either you go into your shell, become depressed,
और यू रिएक्ट, Yes. तो आप तलवार निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर जो महाभारत शुरू होती है, फिर बैंड बज जाती है। एम आई राइट? But right तो या now तो I'm आप actually खुद in a की, very confused state that do I get नहीं back नहीं, to आप कंफ्यूज work मत or होइए, do I मैं wait कंफ्यूज मत another होइए। 6 months and यू start my own, मैं आपको बता दूं, because एनी डे, yeah. एनी डे फ्रॉम नाउ यू माइट गेट ए जॉब। और जिस दिन आप चेन्नई में पैदा हुई थी उसी दिन डिसाइड हो गया था यू आर गोइंग टू लिव इन अनदर कंट्री फॉर एवर, यू विल हैव योर ओन हाउस आउटसाइड इंडिया। ये इज नॉट लाइक आई एम टॉकिंग टू यू लाइक दिस, बट फ्रॉम योर हॉरोस्कोप आई एम सेइंग Thank you. द So ओनली we have थिंग इज another यू caller. यू Yeah. Okay. We यू have नीड टू so many वर्क ऑन योर calls. इमोशनल इम्बैलेंस, इमोशनल इम्बैलेंस पे काम करिए। और एक एमरल्ड इज गुड फॉर यू, इफ यू वांट यू कैन वेयर इट, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। So I'll just take two more, and I have too many calls coming. So yes, we'll definitely invite one more time. We'll take just two more. One was with Vaishali. I did ask you for her, and one person I'll give you. उनका नाम है राजकुमार, जी and he's from California. उनकी date of birth है 26 April 1968. टाइम Time 7:55 evening, and he is born in Punjab, Hoshiarpur. 7:55 55 राइट? 7:55 evening का है उनका, and he want to know 26 about his business and health. जी मैं एक सेकंड देखिए, 26 ऑफ अप्रैल 1968 इज फ्राइडे, 7:55 PM इन होशियारपुर पंजाब। अच्छा, देखिए हेल्थ का तो मैं इनको यही कहूंगा कि ही शुड डेफिनेटली गो फॉर अल्टरनेट मेडिसिन ऑल्सो, लाइक इट इज आयुर्वेदा, इट इज लॉट ऑफ नेचुरोपैथी, यू नो, वो जिंदगी का एक हिस्सा जरूर बनाए। वट एवर इज गोइंग फॉर रेगुलर मेडिकल थिंग, दैट इज ऑल राइट, एलोपैथी जो भी ले रहे हैं, बट ही शुड यूटिलाइज दैट। अभी इनका राहु की दशा शुरू हुई है 2017 से। आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज इन हिज लाइफ, and he's also very multi-talented person. He's very passionate. He will try to live his life with lot of glamour and positive and enjoyment and pleasure and entertainment. ये वाला उनको एरिया बहुत अच्छा लगता है। और he is good into managing things. He is also a multitasker और multifaceted personality है। खाली इनका प्रॉब्लम भी इमोशनल इम्बैलेंस है, बिकॉज द डे ही वाज बोर्न वाज न्यू मून। तो जितने लोग न्यू मून के आसपास पैदा होते हैं उनका इमोशन का ही प्रॉब्लम जरूर हो जाता है, और फिर छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करना, क्योंकि इनको डिप्लोमेसी की स्पेलिंग आज तक नहीं आई। तो दैट इज समथिंग विच गोज अगेंस्ट हिम। तो मुझे लगता है कि थोड़े से रिश्तों पे आपको काम करना चाहिए। आई नो, यू नो, विद एज विद टाइम वी आर सपोज टू ग्रो अप एंड ग्रो वाइज। सो आई अज्यूम दैट 52 में आप बड़े हो चुके होंगे, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि यू हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग राहु विच विल हेल्प यू टू कीप ऑन मूविंग। हेल्थ के लिए मैं जरूर कह सकता हूँ, बिकॉज यू हैव दिस यू नो माइंडसेट जिसमें आप रिएक्ट करना या इफेक्ट हो जाना, यू नो, asking वो about future. That's what he want to know. Can you like? फ्यूचर की टेंशन, हाँ फ्यूचर की टेंशन तो मैं यही कहूंगा कि ये वाला दौर में कोई रिस्क नहीं लें, बिकॉज टेक्निकली इट इज राहु एंड जुपिटर विच हैज स्टार्टेड टिल जुलाई 2022। तो अगले 2 साल जैसा चल रहा है चलने दीजिए। आई विल नॉट से टू गो एनी ओवरबोर्ड एंड टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क, ये मैं एडवाइस दूंगा। उसके बाद इट इज ऑल राइट, ही विल ऑलवेज विन ओवर हिज एनिमी, ये कंफर्म है। Only one last question is I told about the fashion designer Vaishali Kumar. हाँ, वैशाली जी का चार्ट मेरे पास था 30th अप्रैल, विच इज अ गुड नंबर एक्चुअली, एंड आई थिंक इवन शी हैज एक्सपीरियंस लॉट ऑफ चेंजेस बिटवीन 2016 and 18, and lot of things must have changed for her, and this is going to be a good journey, you know, ये बहुत अच्छी बात है। शी इज मल्टी टैलेंटेड एंड बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही क्रिएटिव तरीके से चीजों को बचपन से करती हैं। शी इज वेरी इंट्यूटिव, यू नो, एनी थॉट अबाउट ए पर्सन और सिचुएशन विल ऑलवेज गिव हर द राइट इंडिकेशन अबाउट दैट, एंड शी विल टेक द राइट डिसीजन। इनको जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट इनके लिए है मेंटल पीस, हार्मनी, फैमिली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वहां पे भी बैंड बज जाती है, बिकॉज यू नो इट इज ईजी टू प्रोवोक हर। तो बिकॉज नो मैटर हु, अगर बात ठीक नहीं है तो शी विल नेवर एक्सेप्ट इट। तो वहां पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि फ्लेक्सिबिलिटी इज नीडेड, अदरवाइज शी इज ब्लेस्ड, शी विल डेफिनेटली मेक हर मार्क, शी विल, पीपल विल नो हर, एंड शी विल कीप ऑन डूइंग गुड। शी हैज स्टार्टेड 19 years ऑफ सैटर्न फेज। लोगों को शनि से डर लगता है, और इनके लिए शनि नंबर 1 प्लैनेट है। दैट्स द रीजन हर फेवरेट कलर कुड बी ब्लू, ग्रीन, ऑफ वाइट एंड पिंक। ये वो कलर हैं जो इनके लकी कलर्स हैं। लकी कलर्स ऑटोमेटिकली फेवरेट बन जाते हैं, इंक्लूडिंग ब्लैक। तो ये मुझे लगता है कि इट इज वेरी गुड टाइम विच शी हैज स्टार्टेड। शी शुड नॉट लुक बैक, बिकॉज 16 से 18 तो टर्बुलेंस था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। शी विल डेफिनेटली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड विल कीप ऑन डूइंग गुड इन दिस लाइफ, एंड पीपल विल रिगार्ड हर।
दैट्स अ गुड थिंग, एंड ये ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इनको नहीं पहचाने, तो दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी गुड. शी कैन गो फॉर एमराल्ड, डायमंड एंड ब्लू सफायर इफ शी हैज इंटरेस्ट इन दैट. ये तीनों सोने के काम आने वाले हैं. Lot of viewers are watching our show, and our very good friend Sharmila Captain, she also knows you. She's saying hi, and she's Oh from yeah, I know Sharma. Atlanta. She conduct lot of Bollywood shows over there She's that a very include good Salman Khan friend, and all figures. and she knows us very well, and we are very close to Uh, her, and she's very glad to see you on the show. Hi Sharmila, Sandeep ji is very happy to know that you are sending him hi, and he's also very that is happy. something. And Sandeep ji, Uh, I think so the way you are taking care of people, and some of the callers who have called us giving us feedback right now that they are very happy. And one caller is there. If you say I can take her message, she's been calling me from the show we started. If you say, I'll take that. that's okay. Everyone around me is all sleeping in their own room, so I'm perfectly all right. Just last question. No, I don't know. I know because No good. time is limited, show is limited, and we want to know more and more Absolutely. about you. मैं चाहती थी आपके बारे में जानना, but I'll just take her That's all right. question. Her name is Meenakshi. जी. She date of birth is 10/24/1970. Sorry, 24th October, right? Yeah, Okay. 1970. yeah. She is born in Indore. Time Time is 11:10 p.m. AM or PM? p.m. 2310. So she wants to know about her future, and she wants to buy a house, she's saying. 24th October 1970 is Saturday, 11:10 p.m. in Indore, Madhya Pradesh. Okay, she has started a phase since 2017. I think 17 was a year where a lot of things must have changed in her life. She can teach, train, or convince anyone. She's a born lawyer, so no one can argue with her. But at the same time, she's quite compassionate, and she always believed बचपन से कि मुझे बड़े होके एक दिन दुनिया के लिए भी कुछ करना है. तो people like her, they are the one who run NGO or foundation or trust. They help, they go out of way and help anyone or everyone. So that is something which is so beautiful about her, and she always try to do the right thing or in the right manner. Age will be just a number, so इनको कोई देख के कह नहीं सकता. She can easily hide her 15-20 years. I'm also doing that. So I think that is something which is so beautiful, and a knack of doing things differently in Yeah, a she very has beautiful an NGO, manner is she's something. saying. She's very happy she's listening to you. Oh, she already has an NGO. Oh, that's amazing. तो ये उनका बचपन का ड्रीम था, बचपन से, कि मुझे दुनिया के लिए कुछ करना है. There are very few people who can think like this. Very few people, because it's not easy to shell your hard-earned money. So I think she is amazing person that way, and she can train people, she can teach people, she can any advice given to anyone will be invaluable. तो मुझे लगता है कि इनको दोस्त बना लीजिए, और ये जो एडवाइस करेंगे वो कभी रॉन्ग नहीं होगी. तो that is what people will love her for and keep her as a friend for life. खाली छोटी छोटी बातों में अटक जाना कभी कभी, ये गलत है, ये सही है, उसमें थोड़ा सा ये आइडियलिज्म की बात करूं या वैसे उसमें अटक जाने की कभी कभी चांसेस हैं, बट अदरवाइज एवरीथिंग इज ऑल गुड. She's saying मुझे I'm a लगता है कि giver, I want to do so much for everyone, but मैं ये कर पाऊंगी सबके लिए. That's she's very happy and she's thanking you a lot. oh wow, so definitely she has all the potential to do so, because I have no idea who she is and why she have called up, but I said about whatever she is going for. And मुझे लगता है कि emerald and diamond she should definitely wear, because ये उनके best stones हैं, and it will be supportive. So Sandeep ji, as you on our show, I would really like to know about this thing also. Like आप अभी stones का जो बोल रहे हैं कि stones से क्या affect होता है, like क्या वो ग्रहों को strong करते हैं, और उनके देखिए पहनने का अब तरीका भी. इसके दो आंसर हैं. अब आपको लग रहा है कि मैं हर चीज के दो आंसर क्यों देता हूँ. एक मैं देता हूँ एस्ट्रोलॉजिकल आंसर, एक मैं देता हूँ प्रैक्टिकल आंसर. हाँ. और दोनों के अपने में इंपॉर्टेंस है. देखिए सबसे पहले प्रैक्टिकल आंसर यह है कि स्टोन आपने जब पहन लिया तो आपको वो रोज रिमाइंड कराता है, ओके आई एम वेयरिंग इट स्टोन नाउ, वाओ आई थिंक थिंग्स शुड चेंज फॉर मी, इट शुड वर्क फॉर मी. एक ऑप्टिमिज्म, I believe in power of visualization, I believe in positivity, is all here, everything in is in the mind. As an astrologer 20 साल से, it's been 20 years of my journey with astrology, और 20 साल में मैंने एक चीज कंफर्म समझ लिया है कि सब कुछ चलता है आपकी एनर्जी से. तो what energy you have within you and around you. तो हार्मनी घर पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और अंदर की हार्मनी, खुद की हार्मनी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये पॉजिटिविटी हमेशा कैसे होगा. मैं अपनी फोटो तो सबको मेल कर नहीं सकता कि मेरी फोटो आप जेब में रख लीजिए, तो कौन आपको याद दिलाएगा रोज ये पॉजिटिव बातें.
आपका स्टोन, तो एक तो साइकोलॉजिकल रीजन है, यू नो, आई गिव यू अनदर आंसर। अब मैं आपको राइट आंसर दूसरा मतलब देता हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल आंसर बेसिकली। एवरी जो प्लैनेट है, यू नो, दे आर 9 प्लैनेट्स, हर 9 प्लैनेट का एक जो जोडियाक में है उसका एक स्टोन है जो अब एंशियंट साइंस है, 5000 ईयर्स ओल्ड है, इज अ पार्ट ऑफ वेदास विच आर द ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स ऑन द प्लैनेट। उसमें हर प्लैनेट का एक स्टोन डिफाइन किया हुआ है कि कैसे उस प्लैनेट को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। तो एनी प्लैनेट, लाइक इनकी मीनाक्षी जी की बात करूं, इनके लिए मरकुरी इनका हेल्थ का लॉर्ड है, इनका फिक्स एसेट्स प्रॉपर्टी का लॉर्ड है। प्रॉपर्टी का सवाल था, देखिए वो भी याद आ गया। और प्रॉपर्टी मुझे लगता है कि इनके खरीदने के चांस पूरे बने हुए हैं। तो या तो ये 30 जून तक इनका कोई डील हो सकता है, या 20 नवंबर से, एनी डे फ्रॉम 20 नवंबर दिस ईयर शी माइट बाय हर प्रॉपर्टी। तो मुझे याद आ गया बाय चांस। तो एमरल्ड इज गुड फॉर हर प्रॉपर्टी एंड हेल्थ एंड इट इज प्लेस इन द हाउस ऑफ रिकॉग्निशन। तो अगर मर्क्यूरी को स्ट्रॉन्ग कराना है, मर्क्यूरी सन के साथ है विच इज कंबस्ट, इनका कंबस्ट नहीं कह रहा हूँ, कंबस्ट बहुत नजदीक है सन और मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करेंगे? वेरी एमरल्ड। तो ये एक साइंटिफिक रीजन है, यू नो, इसकी जो एनर्जीज हैं वो बॉडी में आती हैं और देन वो दैट प्लैनेट, पर्टिकुलर प्लैनेट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो स्ट्रांग हो जाती हैं। तो एनी प्लैनेट विच इज गुड फॉर यू, दे आर प्लेड इन गुड हाउसेज, दे आर रूल्ड बाय गुड हाउसेज। ऐसे नहीं है कि अमिताभ बच्चन जी ने नीलम पहन लिया, मैं भी नीलम पहन के, मैं भी हर पिक्चर देख के सोचा मैं भी अमिताभ बच्चन बन जाऊं, ऐसा नहीं होगा। तो यू शुड नो कि आपकी कुंडली में आपका कौन सा ग्रह आपके लिए अच्छा है और उसका कौन सा स्टोन आपको कैसे पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। लॉट ऑफ व्यूअर्स आर टेक्सटिंग मी, दे वांट टू नो कि अगर उनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो क्या आप उनकी टाइम टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो आप उनकी मदद कर पाएंगे इफ दे वांट टू आस्क यू समथिंग? देखिए, टाइम ऑफ बर्थ अप्रोक्सीमेट आइडिया अगर वो बता दें कि, यू नो, आई वाज नॉट श्योर, मॉम सेड 7 o'clock, डैड सेड 8 o'clock, अगर 2 घंटे का भी अगर उनके पास कोई एक फ्रेम है तो देन आई कैन। लेकिन वो कहेंगे कि आई वाज नॉट अवेयर, सुबह हुआ कि रात को, तो देन बिकॉज देन इट इज अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस, मतलब 4 घंटे लग जाएंगे आपसे सवाल करते करते कि, यू नो, कि कितनी शादी हुई, कितने ब्रेकअप हुए, तो उसमें तो इट इज अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो मुझे लगता है कि अगर दो घंटे का अगर फ्रेम है उनके पास, यू नो, कि आइडिया, तो देन वी कैन वर्क ऑन इट by asking them questions about their nature, character, past and their journey, तो उससे पता चल जाता है। वन ऑफ द और फिर मैं तो जी हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे, सॉरी। नहीं कुछ नहीं, मैंने कहा ना, जो फेस देख के, आईब्रोज से और फोरहेड से, नोज से, आईज से पता चल जाता है कि अच्छा इसका मार्ड स्ट्रांग है तो इसका आईब्रोज ऐसा होगा, तो ये टाइम ठीक नहीं है, इसका मतलब 5 मिनट पहले का हॉरोस्कोप हो सकता है। तो मैं उसको then I try to correlate. Yeah, one of our viewer want to ask on screen board I have a question. She's asking कौन से फिंगर में एमरल्ड रिंग पहनी जानी चाहिए? देखिए, हाथ आप ही का होना चाहिए और राइट हैंड लिटिल फिंगर। फैंटास्टिक। तो राइट हैंड लिटिल फिंगर में आप पहन सकते हैं एंड, यू नो, नहीं, मैंने कई बार देखा है, यू नो, आपने मुझे स्टोन कहा था तो मैंने ले लिया, मैंने कहा है वो वाइफ को पहनाया हुआ। तो तब मुझे कहना पड़ता है भाई साहब आप ही का हाथ होना चाहिए। तो ये लिटिल फिंगर, राइट हैंड लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर, या पेंडेंट भी पहन सकते हैं। जैसे मेरे बहुत सारे क्रिकेटर्स मेरे क्लाइंट्स हैं, या फिल्म स्टार्स हैं, अगर तो वो उस मूवी में उसको गरीब दिखाया है, तो गरीब ने इतना बड़ा नीलम कैसे पहना हुआ है 10 लाख रुपए का, तो वो नहीं पहन सकता, तो दे वेयर इट एज पेंडेंट। तो देयर इज नो डिफरेंस। दैट्स रियली नाइस, आपने बहुत अच्छा बताया तरीका कि कैसे उसको पहना जा सकता है। और एक हमारे व्यूअर ये भी पूछ रहे थे कि जैसे कि आप स्टोन्स की बात कर रहे हैं, तो वो हमारा शो देख रहे हैं, वो पूछना चाहते हैं कि क्या हेल्थ इश्यूज हैं, उनकी मदर को पैरालिसिस है, तो डू यू थिंक कि अगर उन्हें कोई स्टोन पहना है तो वो ठीक हो पाएंगे, ऐसा कुछ हुआ है? देखिए, हेल्थ का स्टोन तो सजेस्ट करते हैं, लेकिन किसी का कोई ऐसा प्रॉब्लम है एंड दैट टू समथिंग, यू नो, तो आई वुड सजेस्ट कि पहले आप प्रॉपर मेडिकेशन को फॉलो करते रहें एंड बहुत सारी चीजें, मेंटल, यू नो, माइंड जो है इट इज अ ग्रेट पावर हाउस। तो अगर उनको मेडिटेशन, उनको पॉजिटिविटी, बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग बनाया जाए, घर में मंत्र, एक एम्बियंस क्रिएट किया जाए तो बहुत एनर्जी देता है। एक हैप्पी इंवायरमेंट क्रिएट किया जाए तो वो बहुत इंसान को इनबिल्ट जीने की इच्छा देता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फिर मैटर करता है। फिर आयुर्वेद की बात मैं करता हूँ कि हर्बल, अब तो देखिए ग्लोबली पीपल आर गोइंग आफ्टर हर्बल, यू नो, हर्बल इज समथिंग, यू नो, तो मुझे लगता है वो सब चीजों को ट्राई टू फाइंड ए गुड डॉक्टर एंड वर्क ऑन इट। बट कोई स्टोन पहन के किसी की हेल्थ खराब है और जैसे इतनी उन्होंने आपने बताया हेल्थ डिजीज के बारे में, तो वो रातों रात चेंज हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। One of our viewer has a question: does emerald have side effects or is it good for most of the sun signs? नहीं, डोंट वियर स्टोन्स एज पर योर सन साइन, नहीं तो बैंड बच जाएगी, उनको बताइए, क्योंकि इंडियन एस्ट्रोलॉजी इज बेस्ड ऑन मून साइन नॉट सन साइन, पहली बात। दूसरा बात है, यू नो, मैंने किसी को सजेस्ट किया इट इज गुड फॉर प्रॉपर्टी और फाइनेंस और व्हाटएवर, बट व्हाट इफ अकॉर्डिंग टू हिज और हर हॉरोस्कोप एमरल्ड इज नॉट ए गुड प्लैनेट,
तो ही इज नॉट सपोज टू वियर इट। तो अपने खुद के हॉरोस्कोप, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस देख के। One of our viewer has a question that she's in living relationship and she's saying कि क्या फर्क पड़ता है कि हम अपनी शादी हॉरोस्कोप मतलब मैच करके करवाएं या she should get married just like that only, does it मैं matter तो or मैं not? मैं तो यही कहूंगा कि अब क्या फर्क पड़ता है। देखिए देखिए, मैं एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, मैं ऑन ए सीरियस नोट में मजाक कर रहा था। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आई इवन फॉर माय क्लाइंट्स या वेरेवर यू नो, मैं मुझे कहीं भी मोटिवेशन टॉक के लिए कहीं बुलाते हैं तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि माय सजेशन इज बिफोर फॉलिंग इन लव प्लीज गेट दैट हॉरोस्कोप चेक्ड। It's so बिकॉज होता क्या है यू difficult, नो, संदीप जी, ये तो बड़ा मुश्किल चीज आई बता नो रहे हैं आप, कैसे पॉसिबल आई नो है? आई नो कि हाँ मुझे लगता है कि मुझे आपसे मोहब्बत हो सकती है, प्लीज अपना पहले मुझे डेट ऑफ बर्थ टाइम दे दीजिए, यू नो। सो So आई नो this इट इज can नॉट be a new पॉसिबल प्रैक्टिकली। information for all the lovers around the world that first ask the horoscope नहीं, कि संदीप जी ने बताया हमें. बट ऑन ए सीरियस नोट मैं यही कहना चाहता हूँ कि यस, मैचिंग हॉरोस्कोप मेक सेंस एंड मैच तो कोई भी इंटरनेट से कर लेगा, बट इज नॉट अबाउट द नंबर्स यू नो कि 22 और 32 आउट ऑफ 36 आर इंपॉर्टेंट। यू हैव टू नो द पर्सन इनसाइड आउट। जी कितनी बार लिव इन रिलेशनशिप छोड़िए, 5-5 साल 7 साल शादी के बाद भी यही आर्गुमेंट होता है, यू डोंट इवन अंडरस्टैंड मी, जी यू जी नो। जी 5 साल बिल्कुल. शादी के बाद भी लोग यही कहते हैं। तो जो एस्ट्रोलॉजर आपको बता सकता है इन जी फ्यू मिनट्स जी टोटल साइकोलॉजी ऑफ ए पर्सन, उसकी कुंडली देखकर, वो आपको 2 साल 3 साल में भी पता नहीं चलेगा। तो आई थिंक इट मेक्स सेंस व्हेन यू हैव डिसाइडेड टू गो विद समवन फॉर ए लाइफ लॉन्ग, यू नो, हमें लाइफ पार्टनर कहते हैं, देन इट इज इंपॉर्टेंट कि आप उनकी हॉरोस्कोप जरूर चेक कराइए। मैच मत कराइए, चेक कराइए कि उसका नेचर, कैरेक्टर, उसका फ्यूचर, उसकी जर्नी, उसका विजडम, उसका स्पिरिचुअल लेवल, उसका केयर, उसका लव, हाउ ट्रू इट इज एंड व्हेन इट विल टिल व्हेन इट विल बी देयर। वेरी नाइस. आप बहुत अच्छे से बताते हैं संदीप जी, आपसे बात करके इतना अच्छा लग रहा है ना. आज तो शो रियली एंड करने का मन नहीं कर रहा बिकॉज बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं हमारे स्टूडियो में, बट आई टेल माय व्यूअर्स की वी विल कॉल अगेन संदीप जी ऑन आवर शो. आप उनसे बात कर सकते हैं एंड ऑफ कोर्स यू कैन कनेक्ट विद हिम, यू कैन कॉल अस ऑन आवर स्टूडियो नंबर्स एंड वील ऑफ कोर्स कनेक्ट यू विद हिम. एंड संदीप जी आप इतने पॉजिटिव हैं, दैट्स व्हाट आई रियली फील लाइक कि कितना आप पॉजिटिव कर देते. इट्स लाइक नॉट अ स्ट्रेसफुल थिंग, लाइक आप कितना इजीली चीज़ को समझाते हैं. एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड, आई शुड से. बहुत अच्छा लग रहा है थैंक आपसे यू सो बात मच। करके. नहीं, मुझे लगता है कि यू नो फॉर मी इट इज माय पैशन। अगर आप ध्यान से दिया हो, यू नो, वो दैट लेडी वाज ट्राइंग टू टेल मी समथिंग, बट मैंने उनको बोलने नहीं दिया, जी बिकॉज यू नो दिस इज माय पैशन। आई नीड टू डिस्कवर दैट हॉरोस्कोप इन फ्यू सेकंड्स। तो ये 20 साल से मैं कर रहा हूँ, तो इट गिव मी लॉट ऑफ पॉजिटिविटी एंड आई फील आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर हर लाइफ, यू नो। तो दिस बिलीव वन शुड हैव. So no doubt this is my profession, and you know, people, they reach me through Google and they, you know, search me and find my website or whatever. So that's how they connect. But otherwise it is, you know, I try to make sure कि उनकी जिंदगी में कोई तो चेंज आए मुझसे बात करने के बाद. बिल्कुल बिल्कुल ऑफ कोर्स. एंड one of the viewers, she's been texting that she want to know about her son, but अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं पूछ पाऊंगी, नहीं तो we'll have to we can just be fine whatever you say. ठीक है, पूछ लीजिए. This will be the last question, viewers. Please आप बाकी आप connect करना चाहें तो you can call on our studio number 7327916546, or we have one more line, we can update it on our screen board. You can call on that number also and we will take your calls. And I really apologize, we couldn't take too many calls because संदीप जी का भी टाइम आज बहुत कम था, बट संदीप जी ने हमारे लिए आज टाइम निकाला है and we are very thankful to him. She want to ask उनका बेटा, her name is संदीप ही उनके बेटे का नाम. And Okay. 8:55 AM उनका टाइम है. 10/26/98 is date of birth. Sorry, 10/26/98. 26th of October 1998. Okay, 8:55 in the morning and place of birth. LA में है ये लोग. उनका बर्थ दिल्ली में हुआ है बट दे लिव इन LA. अच्छा, दिल्ली में हुआ है ना? जी. I have to put Delhi because place of birth is important. Okay, 26 October 26, 1998 is Monday. 98, that means he is 21 now. Yeah. 8:55 in the morning in Delhi. Okay. So your question देखिए is ये तो what he will be doing, job or business, that's what. नहीं, you ये तो
नहीं, ये तो हीरो हीरो है। देखिए, ये कभी भी इसके बस की नहीं है कहीं पे किसी के अंडर में काम करना, तो ही विल नेवर टेक इंटरेस्ट इन इन वर्किंग अंडर एनीवन, बिकॉज ही इज द बॉस, दिस इज व्हाट ही फील, एंड ही इज वेरी वेरी एम्बिशियस। उसको बचपन से उसका स्टेटमेंट, फेवरेट स्टेटमेंट पता क्या है? वो जो हमेशा कहता होगा कि आई वांट टू गो वेयर नो मैन हैज गॉन बिफोर। तो ये उसका जर्नी है, सब कुछ बहुत बड़ा उसे एक्सप्लोर करना है। एंड वेरी पैशनेट, वेरी क्रिएटिव, हर चीज को ब्यूटीफुल तरीके से करना, एंजॉय करना, ये उसकी जिंदगी का हिस्सा है। और मुझे लगता है कि अभी तक उसको ये नहीं पता था वो बॉर्न क्यों हुआ है, लेकिन 2018 और 19 में जब उसकी बैंड बजी, जब उसका एक ब्रेकअप हुआ, और तब उसको थोड़ा सा रियलाइजेशन हुआ, और अब ये बड़ा हो चुका है। तो पिछले एक साल से इनकी मदर जरूर आपको बताएंगी कि शी मस्ट बी फीलिंग नाउ कि ही हैज बिकम अ मैन फ्रॉम ए बॉय। इससे पहले वो, उसे खुद नहीं पता था, ही वॉज टू कभी इधर और कभी इधर, मैं ये भी कर लेता हूँ वो भी कर लेता हूँ, बट अब आई थिंक ही हैज बिकम मोर सेटल्ड इन हिज माइंड एंड बिकम मोर इंडिपेंडेंट, एंड दिस फेज विल डेफिनेटली हेल्प हिम। खाली मैं ये जरूर बोलूंगा कि मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस का कोई वैल्यू नहीं है, सबसे इनवैल्यूबल है, व्हाट आई एम सेइंग इज इनवैल्यूबल। तो पहले एक्सपीरियंस के लिए इनको जॉब करना चाहिए। ही नीड टू लर्न डिसिप्लिन, ही नीड टू लर्न मैनेजमेंट, ही नीड टू नो थिंग्स अराउंड। थोड़ा मेच्योरिटी को बढ़ाइए और ये वक्त को थोड़ा सा गुजार लीजिए, उसके बाद देन आई थिंक ही विल बी his own boss. That's what I believe. And I think he might take interest either in real estate or something to do with which is glamorous or luxurious, or maybe होटल और रेस्टोरेंट में ये इनका इंटरेस्ट हो सकता है। दिस इज व्हाट आई बिलीव। बाकी मुझे नहीं पता कि उनका उन्होंने क्या पढ़ाई की एंड वेयर व्हाट एग्जैक्टली ही वांट। Yeah. So we do have viewers who are checking, so you can connect with संदीप जी। आपकी संदीप जी कोई वेबसाइट भी है अगर आपसे कोई कनेक्ट होना चाहे तो? जी बिल्कुल, अभी तो पड़ोसी काम नहीं आते, तो खुद के नाम पे ही वेबसाइट रखनी होती है। इट इज sandeepkocher.com इज माय वेबसाइट। आई एम जस्ट जोकिंग। मैं खुद को एंटरटेन करता हूँ, इट इज अ वेरी सीरियस सब्जेक्ट, तो आपने आई इतनी ट्राई टू। पॉजिटिविटी हमारे शो में लाए हैं संदीप जी। आई एम रियली थैंकफुल जो हमारे व्यूअर्स शो देख रहे हैं ऑल ओवर यूएस एंड कनाडा, वो लोग बहुत रिलैक्स फील कर रहे होंगे। और जिस ढंग से आप बताते हैं, इट्स रियली वेरी नाइस, जस्ट नॉट टू इम्प्रेस यू बट द वे यू टॉक, द वे यू टेक केयर ऑफ योर पीपल्स इमोशन, दैट्स व्हाट आई रियली एडमायर। कि आप उन्हें बहुत, और जो भी मैं सुन रही हूँ, जैसे जो मुझे आवाज़ें आती है उससे आपको एक थोड़ा सा पता लग जाता है कि हाउ देयर फीडबैक इज। तो वो बहुत खुशी और रिलैक्स, और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप उन्हें समझ रहे हैं, जो वो आपसे पूछना चाहते हैं हम उन्हें बिल्कुल अच्छे से समझा रहे हैं। दे आर रियली फीलिंग वेरी हैप्पी इंटरेक्टिंग विथ यू। दैट्स वेरी नाइस। थैंक यू, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। या तो मैं चाहूँगी कि हम जब शो को एंड भी करेंगे तो पहले तो आपकी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन जो आप हमें बताइए, प्लस एक शेर हो जाए आपकी तरफ से, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। शेर तो देखिए मैंने बहुत सारे लिखे हैं, खाली मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हैप्पी जोन में रहना बहुत जरूरी है। जी तो मैंने लिखा था कि खुश नसीब हैं वो लोग जो खुश रहा करते हैं, हैप्पी गो लगी। जी। तो खुश नसीब हैं वो लोग जो खुश रहा करते हैं, और ऐसे सितारे किस काम के जो रात भर जगा करते हैं। क्या बात है। तो आप तो कोई रेमेडी और उसके चक्कर में मत पड़िए, हैप्पी रहेंगे तो ब्लेस्ड रहेंगे, मेरा ये मानना है। और मैंने एक लिखा था मिरर के ऊपर भी कि जिंदगी में मुस्कुराने की आदत जरूर डालो, जिंदगी में मुस्कुराने की आदत जरूर डालो, और ना मिले कोई वजह तो आईना ही देख डालो। एट लीस्ट स्टार्ट स्माइलिंग, लाफिंग ऑन योरसेल्फ। सो बहुत लव अच्छा। योरसेल्फ, बिगिन योर जर्नी फ्रॉम देयर एंड बी इन ए हैप्पी स्टेट, बिकॉज मुझे लगता है कि जो इंसान मुस्कुराता है वो खुश रहता है ऑटोमेटिकली। स्माइल को आदत बनानी चाहिए, सिग्नेचर बनाना चाहिए अपना, और उसका ऑरा, उसकी पॉजिटिविटी अबंडेंस एक प्रॉस्पेरिटी को क्रिएट करती है, और वो इंसान हमेशा एक हार्मोनियस स्टेट में रहता है। आई बिलीव इन दैट। That is so nice. So viewers, you can connect on sandeepkocher.com, उनकी वेबसाइट है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स आप लोग स्टूडियो में भी कॉल कर सकते हैं, वी विल गिव यू हिज नंबर, यू कैन कनेक्ट विद हिम डायरेक्टली। थैंक यू सो मच संदीप जी, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू, बहुत अच्छा लगा। एंड रियली आई रियली डोंट वांट टू एंड द शो। बहुत पॉजिटिविटी आपने सबके लाइफ में लाए, लाइक आपकी बातों से सबको एक आशा की किरण जग गई होगी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू किरण, संदीप जी। आशा की किरण बहुत जरूरी है। आपका नाम भी रश्मि है, विच इज अगेन ए पार्ट ऑफ किरण, रश्मि। so that is you also, you have a great aura, that way you are also smiling all the time, which is good. I would like to thank Gaurav who has connected me here, and look forward to have more shows like this, and ऑफ I think कोर्स। we should definitely spread some positivity and people should have some hope. तो मुझे लगता है कि जिस जिंदगी को गुजर जाने दीजिए, and just have faith in God, keep doing your prayers, create harmony, relationship पे काम करिए, and don't worry about this virus because nothing is permanent in life, so this too shall pass, have that faith. बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा संदीप जी आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।
नमस्ते। You're welcome. Take care. Wish you all the very Thank very you. best. Good luck Stay and safe, God stay bless. home. Thank you. Yeah, you too. मैं हूँ रश्मि बेदी। हमें उम्मीद है ये शो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट वीडियो के लिए देखते रहिए माई ड्रीम टीवी यूएसए और पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ड्रीम टीवी यूएसए।